Hello everyone. In today's class, we are going to start with logic gate. Today we are going to see first two practical. The first practical for this paper is the study and verify the truth table of various logic gate. That is all the gates. Then in the second question, we are going to draw the Boolean expression using logism. Let's see the first one. Logic gate. The term logic, it describes a system or you can say set of principles which underlies the arrangement of element in computer or electronic devices so as to perform a specified task. Okay, ये एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने वाले होते हैं. द बिल्डिंग ब्लॉक यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल सर्किट आर लॉजिक गेट्स. जो सर्किट डिजाइन होते हैं उसमें हम डिफरेंट लॉजिक गेट यूज करते हैं. देयर आर 3 एलिमेंट्री लॉजिक गेट एंड अ रेंज ऑफ अदर सिंपल गेट. बेसिकली लॉजिक गेट में वी आर हैविंग कैटेगरीज बुलियन the basic gates and the universal gates and the special gates. When we say about the basic gate, we are having 3 gates, that is not, and, or. And when we talk about universal gates, we are having nor and NAND. Okay, let's see. These are the different types of gates which we have. Okay, जो सबसे पहले है that is NOT gate. It is very simple. NOT gate is working as a inverter. A NOT gate accepts one input value and produces one output value. By definition, if the input value for a NOT gate is 0, the output will be 1. And if the input is 1, the output will be 0. Okay, it acts as a inverter. Means आप जो भी input दोगे ये उसको revert कर देगा, invert करने वाला है. Boolean expression is x is equal to a dash or sometimes it is written as a bar, whereas this is the logic symbol. And truth table is here you will have one input a as an input and x will be the output, correct? So if you are giving 0, you will get 1, and if you are giving 1 as an input, so it will return you 0. Okay, after NOT gate we are having AND gate. AND gate accept 2 input signal. If the 2 input values for a AND gate are both 1, the output is 1, otherwise the output is 0. And D dot. Okay, so the expression is x is equal to a dot b, and this is the logic symbol. You can see 2 inputs with 1 outputs. So and 2 इनपुट है तो ट्रूथ टेबल में जो वैल्यूज होगी वो होगा 2⁻n के फॉर्मेट में. ओके, सो 2⁻n मीन्स 4, करेक्ट, 2 इनपुट्स. और अगर 3 होता तो 2⁻3 विच विल बी 8. ओके, तो इसे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यू विल राइट 2 times 0 2 times 1 देन अल्टरनेट, एंड व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0 0 you will be getting 0 because you know dot means multiplication, correct? So anything multiplied with 0 will be 0 only. Only in the case when both the inputs are 1 1, you will get the output as 1. Okay, तो AND gate ऐसा काम करता है. Then उसके बाद आता है OR gate. OR gate is the last, you can say, basic gates. If 2 input values are both 0, the output is 0, otherwise output is 1. OR gate के लिए we are having plus as a symbol, and this is the logic symbol which we are using, diagram. And truth table इसका दोनों 0 है, सो 0. रेस्ट ऑल द केसेस यू विल गेट 1 बिकॉज यहाँ पे प्लस है. ओके, देन उसके बाद वी आर हैविंग NAND गेट एंड NOR गेट. दीज आर द यूनिवर्सल गेट्स. NAND and NOR gate are essentially the opposite of AND and OR gate respectively. You can see here this N represent the इन्वर्टर. ओके, AND गेट, सिंपल AND गेट के ऊपर आपने अगर इन्वर्टर लगा लिया सो ये वर्क करेगा एज अ NAND गेट. ओके, तो ये टोटल रिवर्स ऑफ AND गेट है. यू कैन सी हियर AND गेट में हमने देखा था 1 into 1 was 1, रेस्ट 0 था, बट यहाँ पे उसका रिवर्स हो गया. एंड सिमिलरली NOR गेट, यहाँ पे पूरा NOR गेट है, जस्ट एक इन्वर्टर लगा दिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में NOT गेट लगा है. ओके, तो ये पूरा ट्रूथ टेबल भी वो इन्वर्ट कर देगा. ओके, दीज टू आर द यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट में क्या डिफरेंस होता है, यूनिवर्सल गेट एक स्पेशल गेट्स है जिसकी हेल्प से आप कोई भी सर्किटरी इजिली ड्रॉ कर सकते हो. ओके, देन वी आर हैविंग स्पेशल गेट्स XOR and XNOR. XOR is called as an exclusive OR gate, and an XOR gate produces 0 if 2 inputs are same, otherwise it will give you 1. Okay, so A and B
and one output will be there. So इसमें क्या होगा, अगर दोनों input same है तो 0, otherwise it will give you 1. Okay, both the input should be same, then only you will get the 0, otherwise 1. Okay, और अगर ये एक्सप्रेशन को आप एक्सपांड करेंगे, so this become a dot b dash plus a dash dot b. Okay, then after that XOR, we are having XNOR gate. Simply अगर आपने XOR gate के ही आगे नॉट लगा दिया, so ये XNOR gate बन जाता है. Okay, so this was all about the gate. Let's see how to draw that, design that in Logism. So Logism का जो software है, it is easily available over the internet. You can find it. Okay, I'm using here 2.7.1. So when you open, this is the IDE of Logism. Okay. You can see here we are having different gates, and these are the, you can say, main circuitry which we can frequently use it. तो सबसे पहले गेट्स पे क्लिक करके हम नॉट गेट लेंगे. नॉट गेट यहाँ पे आपने ये ड्रैग किया. ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज अ IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ओके, ये रेक्टेंगल को आप इनपुट कहते हैं एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड एज अ आउटपुट. ओके, आपको क्या करना है, सिंपली ये जो डॉट दिख रहा है इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है. ओके, इसको आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर दोगे. ये कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट अ रेड मार्क, मीन्स कि ये कनेक्शन प्रॉपर नहीं है. अब यहाँ पर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं यूजिंग दिस लेबल. यू कैन राइट हियर नॉट गेट, दिस इज योर इनपुट A and this is your output y equal to a dash. Okay, so when the input is 0, you are getting output as 1, and you can run using this hand thumb. So अगर इसको मैंने 1 किया तो हमारा आउटपुट इन्वर्ट हो गया, which is 0 now. Okay, likewise you can do AND gate. You will take 2 inputs and 1 output. Okay, and then you will directly make the connection. अब यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट दिख रहे होंगे आपको, तो आप इनमें से कहीं से भी आप कनेक्शन कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये प्रॉपरली कनेक्टेड है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी ऐसे भी कनेक्शन कर रहे हैं. ओके, ये पॉइंट पे ही कनेक्टेड होना चाहिए. देन दिस इज द आउटपुट. यू कैन गिव द लेबल. लेबल पार्ट इज कंपल्सरी. अगर आप लेबल नहीं करेंगे तो किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि आपने ड्रॉ क्या किया है. दिस इज A, दिस इज योर B, एंड y इक्वल टू A डॉट B. करेक्ट, एंड है. सो एंड गेट को वापस अब रन करने के लिए, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0, सो आउटपुट इज 0. व्हेन B इज 1, देन ऑल्सो इट इज 0. व्हेन इट इज 0, इट इज 1. A इज 1, तो भी 0 आएगा. जब दोनों इनपुट 1 होगा, देन ओनली विल गेट द आउटपुट. करेक्ट. सिमिलरली विल डू फॉर OR गेट. OR गेट लिया हमने, देन आई एम टेकिंग 2 इनपुट, 1 and this is 2. Okay, and 1 output I'll take from here and we'll do the connection. मेक श्योर कि ये प्रॉपरली कनेक्टेड है, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं आएगा. ओके, ये कनेक्शन हो गया. आई विल यूज द लेबल. दिस इज अवर OR gate, so I'll write here OR gate. This is our input A, this is our output B, and this is y equal to A plus B. Okay, now we'll run using the thumb icon. So when both the inputs are 0, you are getting output as 0. When B is 1, you will get 0 plus 1 will be 1, correct? And if B is 0, A is 1, तो भी आपको आउटपुट मिलेगा. When both is 1, you will get the 1 only. Okay, this is about the OR gate. Similarly, you can draw for the rest of the gates, all the gates which we have mentioned here, learned here. Okay, then हमारे पास second question है. I'm hoping that you will complete this, and if you are facing any doubt, you can put the comment.
Okay, now see the next question. Simplify the Boolean expression and realize it. Okay, अब यहाँ पे देखो पहला जो सवाल है y इक्वल टू a डॉट b प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन. ओके, सो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? वी आर हैविंग योर b प्लस सी इन अ ब्रैकेट, करेक्ट, एंड 3 अल्फाबेट्स है, मतलब 3 इनपुट्स आर देयर. सो हर एक पेज पे आप 3 ही ड्रॉ करेंगे, 3 से ज्यादा गेट नहीं अलाउड है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ मेस. ओके, सो नाउ वी टेक अ न्यू पेज. देन अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन में था हमें 3 will take input. I'm taking 3 input, A, B and C. Okay, and then I'll take a label. This is A, this is B and this is C. Okay, now we can see the question. The question was, the first question was b plus c, correct, and a बीच में डॉट है, तो अभी हम यहाँ पे b plus c करना है. प्लस मतलब ऑब्वियसली और गेट, करेक्ट. सो टेक और गेट, पुट हियर. नाउ विल जॉइन द कनेक्शन. नाउ व्हाट, इसका जो प्रोडक्ट है ये अभी यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, बीच में डॉट था ना, तो डॉट मीन्स एंड गेट, सो विल सिंपली टेक द एंड गेट एंड विल डू द कनेक्शन हियर. इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे? यू हैव टू मेक द ट्रुथ टेबल फॉर दैट. देन ये ऐसे ज्वाइन हो गया. अब यहाँ पे जो इक्वेशन था वो इक्वेशन हमको यहाँ पे लिखना होगा. इक्वेशन वॉज योर y इक्वल टू a डॉट ब्रैकेट में b प्लस सी. यस, ये आपने ऐसे लिख लिया. अभी हम क्या करेंगे, हमको ट्रुथ टेबल बनाना है. सो विल राइट हियर, यू कैन, आई एम राइटिंग हियर, आप अपने बुक पे लिखिएगा. ट्रुथ टेबल यहाँ पे नहीं लिखना है हमको. a b and c. देन यहाँ पर आपने लिखा सपोज b प्लस सी एंड देन यू आर राइटिंग y which is the expression. okay, so अभी यहाँ पे 3 inputs है हमारे पास, तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? 2 raised to 3 which is 8, करेक्ट. तो 4 times 0 होगा यहाँ पे, एंड आप 4 times 1 लिखेंगे. देन यहाँ पर b में 2 times 0, 2 times 1, एंड देन वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है. देन 2 times 1, ठीक है, एंड ये अल्टरनेट होगा. दिस विल बी 0, देन 1, देन 0, देन 1, 0, 1, 0 and 1. ओके, तो b प्लस सी मीन्स अब यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म करेंगे. सो दिस इज 0, 1, 1, दिस इज ऑल्सो 1, करेक्ट. दिस इज 0, देन दिस इज 1, दिस इज 1, एंड बाकी सारे 1 ही हैं, करेक्ट. देन अभी इनका प्रोडक्ट कर देंगे a के साथ में. तो 0 into 0 विल बी 0, 0 into 1 विल बी 0, देन फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, 4 times 0 ही हो जाएगा, करेक्ट. देन उसके बाद 1 into 0 विल बी अगेन 0, 1 into 1 विल बी 1, देन 1 into 1 विल बी 1, देन 1 into 1 विल बी 1. ओके, तो बेसिकली a से आपने b प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन किया. ओके, तो अब इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे? ये ट्रुथ टेबल आपने लिख लिया, फिर उसके बाद अभी आप वेरीफाई करोगे. व्हेन बोथ द एवरीथिंग इज 0, सो यू विल गेट 0. व्हेन c is 1, अगेन नो चेंजेस, 0 आया. देन अगर हमने c को 0 किया है, b को 1 किया है, b को 1 किया है, तो भी कुछ भी चेंजेस नहीं, y में 0 ही है. ओके, वैल्यू कब चेंज हो रही है वो देखेंगे हम यहाँ पर. व्हेन a is 1 and c is 1. ओके, इसको 0 ही रखा है, a is 1 and c is 1.
सो यू विल गेट द आउटपुट एज 1. करेक्ट, ये हमारा वेरीफाई हो गया. देन हम आगे वेरीफाई कर रहे हैं. व्हेन a इज 1 एंड b इज 1, इसको हटा दिया, इसको 1 कर दिया. सो हमें फिर से आउटपुट मिल रहा है. देन व्हेन ऑल इज 1, everything is 1, so you will get the 1 as output. Okay, so this is how we have to verify the truth table. Likewise, ये सारे इक्वेशंस आप ट्रूथ टेबल आप ड्रॉ कर सकते हो. अगर आपको ये एक ऐसा सपोज ये दिया है, दिस इज नॉट गेट. करेक्ट, ये क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी और नॉट गेट, ये भी कर लेते हैं. चलो, तो इसमें क्या करेंगे, टेक 3 इनपुट्स. Then I'll give the name. This is A, this is B, and this is C. अब क्या करना है, we have to perform the addition. Correct, so addition means OR gate. So आप इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप तीनों आप इनपुट दे सकते हो. ठीक है, इसमें आप कितने भी इनपुट दे सकते हो. यू कैन सी देयर आर पोर्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी. और फिर क्या करेंगे, इसमें सारा हम उसमें नॉट लगा देंगे. ओके, देन उसके बाद नॉट गेट लिया हमने और नॉट गेट यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे. ये हो गया. अब इसके बाद यहाँ पर आउटपुट ले लो. आउटपुट लिया एंड इसको कनेक्ट कर दो. कनेक्ट किया. अब इसके बाद यू विल टेक अ लेबल एंड यू विल राइट योर what y इक्वल टू a, ब्रैकेट ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी द होल बार. ओके, आप डैश सिंबल डाल देंगे तो मतलब बार ही हो गया. तो अभी इसको भी आप कैसे, जैसे यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल बनाया था, आप वैसे ही इसका भी ट्रूथ टेबल बनाएंगे एंड वेरीफाई करेंगे. एक बार वैल्यू चेक करेंगे कि कब कब आपको आंसर आ रहा है. ओके, सो लाइकवाइज यू विल कंप्लीट द प्रैक्टिकल 2 ऑल्सो. Hope so you have understood, and if you are feeling that you are still facing doubt, you can mention in the comment section. Thank you so much for listening this